Good morning, student. Welcome to our next topic of the chapter Nationalism in Europe. Dear student, before this chapter, we had already studied about the how the nationalism was dominated by the imperialism. Today, we are going to discuss about the Balkan issues, and we will discuss that how the First World War began. Let's start the topic. So, as we had studied earlier, that during the last phase of the 19th century, nationalism, the word nationalism lost its momentum, है ना? And because of that, many countries of the world or the Europe, which at first they were the nationalist, at first they adopted nationalism, after that they become imperial. The idea of imperialism came in their part. So this thing was very much important, especially in the area of the Balkan region. Balkan, it lies on the southern part of the Europe. ना ये आप देख रहे हो ना, southern part of the Europe में Balkan region है. This part of the Balkan region was totally under the Ottoman Empire. Ottoman Empire के अंदर में ये था, ठीक है. A region of geographically and ethnically variation comprised modern day. That these Balkan region, that was one of the Balkan region in previous. Nowadays the Balkan region is totally been destroyed. और आज क्या है, the state, the countries like Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Herzegovina, all these countries are the present countries of the Balkan region. ठीक है, पहले ये बल्कन रीजन कहलाते थे, लेकिन आज ये आपके इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. एंड दीज कंट्रीज वर आल्सो नोन एज स्लेव भी कहलाते थे, बिकॉज दे वर अंडर द ऑटोमन अम्पायर. क्लियर, ये तक समझ में आ गया. आफ्टर क्या हुआ, देखिए, लार्ज पार्ट ऑफ द वर अंडर द ऑटोमन अम्पायर, दैट्स व्हाई दे वर नोन एज द स्लेव. When the idea of nationalism emerged in the rest part of Europe, ठीक है, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, देन इन आपका जर्मनी, आफ्टर दैट इन रशिया, इटली, इन सब देशों में जब आपका नेशनलिस्ट आइडियाज आई, तो दीज नेशनलिस्ट आइडिया स्लोली स्टेडली केम इन द बल्कन रीजन. ओके, बल्कन रीजन में भी ये आइडिया धीरे धीरे फ्लोरिश होना स्टार्ट हुई. दैट इज नोन एज रोमांटिक आइडियाज, रोमांटिज्म, ठीक है, रूहबादी. Because with the help of books, with the help of plays, with the help of songs, these nationalist idea, they slowly came in the part of the Balkan. And these Balkan countries, है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब देशों ने they started to think that कि we were independent in past, we were independent in the past, but these Ottoman Empire, Muslim Empire or the Ottoman Empire make us slave. In past we were independent, past में हम लोग इंडिपेंडेंट थे, लेकिन Ottoman Empire ने हम क्या कर लिया, अपना slave बना लिया. So against the Ottoman Empire, a type of revolution started to develop in the mind of the people of Balkan region. They started to fight against the Ottoman Empire to regain the long last आपका इंडिपेंडेंस, है ना. जो लॉन्ग लास्ट इनका इंडिपेंडेंस था, जो ख़त्म हो चुका था, जिसको ऑटोमन एम्पायर ने ले लिया था, उस इंडिपेंडेंस को दोबारा से पाने के लिए उनके अंदर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. एंड नाउ दीज कंट्रीज लाइक अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, हर्जेगोविना, आपका दीज कंट्रीज दे स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर. Ottoman Empire, when the Ottoman Empire came to know that then these things, Ottoman Empire ने क्या किया, he started to give certain आपका freedom to these countries. आपको क्या चाहिए, आपको freedom चाहिए, तो these small countries, some freedoms were given by the Ottoman Empire, but these small countries, the Balkan countries of Balkan region, they denied कि we can't need the little amount of freedom, we want full independence. Now we can't be able to live with you. This is the thinking, that was the thinking of the Balkan region, and that's why they started to fight with the Ottoman Empire. ठीक है, rebellion nationalists in Balkan region thought of their great struggle as attempt to win back their long lost independence. So the countries of Balkan region, they tried to fight with the Ottoman Empire, and they tried to get the
आपका इंडिपेंडेंस। जो थोड़ी बहुत आज़ादी देने की बात की गई थी बाय द ऑटोमन एम्पायर, उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मेरा समझ में आ गया। सो इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लियर हुआ कि द मेन रीजन फॉर द रेवोल्यूशन इन द बल्कन रीजन वाज दैट द रोमांटिक आइडियाज, how the people of France fight and they get the independence, how the people of Germany fight, they get the independence. Why can't we fight and we get the independence? This type of fighters came and they tried to struggle with the Ottoman Empire and try to get their independence. Okay. अब क्या हुआ कि when these small countries they started to get the independent, भाई जो अभी शुरू से में देश आज़ाद हुआ है, they were very weak. वो आपके क्या होंगे? वीक होंगे। वीक आपके इकोनॉमिकली होंगे, सोशली होंगे, पॉलिटिकली होंगे, मिलिट्री होंगे। So these countries were weak, and when these countries were getting independent, the other powerful countries of Europe who already achieved the independence, like Russia, Germany, England, Austria, है ना, they thought that this is very good chance. It is very good chance to capture all those countries which were there in the Balkan region. जो नए नए कंट्रीज आपके आज़ाद हो रहे थे, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, इन सब देशों को हथियाने का, कैप्चर करने का उनके पास एक अच्छा मौका मिला। क्यों मिला? बिकॉज दीज न्यूली बोर्न कंट्रीज वर वीक। अब आपके जहन में आता होगा कि वाई दीज स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज, दे ट्राई टू कैप्चर द वीक कंट्रीज ऑफ द बल्कन रीजन। तो रीजन इज दैट कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी तरीके से यूरोप में आ गया था। यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ये जो आपके रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सब जो देशों में इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी, एंड दीज इंडस्ट्रीज दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स, एंड दीज कंट्रीज दे नीड न्यू मार्केट। उनको नया मार्केट चाहिए था, एंड वेयर दे विल गेट द मार्केट। मार्केट उनको कहाँ मिलेगा? ये जो आपके नए देश आज़ाद हो रहे थे वही उनके मार्केट बनेंगे, अगर उनको वो अपने कब्जे में कर लेते हैं तो। ठीक है। सो द बल्कन स्टेट्स वर फीरियसली जीलियस फॉर ईच अदर एंड होप टू गेन मोर एंड मोर टेरिटरी। इसलिए ये सब देशों ने क्या करना स्टार्ट किया? बल्कन रीजन के टेरिटरीज को पाने की कोशिश करना स्टार्ट किया। इंटेंसिव रिवेलियर्स एमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड, कॉलोनीज एज वेल एज आर्म एंड द नेवल। और इसी कारण क्या हुआ? यूरोपियन कंट्रीज में एक तरीके से होड़ सी लग गई कि कौन सा कंट्रीज अधिक से अधिक पावर को अडॉप्ट करेगा, कौन सी कंट्रीज अधिक से अधिक टेरिटरीज को जीतेगा। क्यों? फॉर ट्रेड। उसके लिए उन्होंने कॉलोनीज को जीतना स्टार्ट किया, और फॉर दैट दे इंक्रीज देयर आर्मी, दे इंक्रीज देयर नेवल पावर, है ना। अपनी आर्मी को बढ़ाना स्टार्ट किया, अपनी नेवल पावर को बढ़ाना स्टार्ट किया। एक तरीके से होड़ लग गया, किसका? आर्म्स का, वीपन्स का होड़ लग गया। एंड दिस टेंशन, दिस जेलसी ड्रैग द वर्ल्ड। इस टेंशन और इस जेलसी ने क्या किया? दुनिया को एक वर्ल्ड वार की तरफ भेजा, दैट वाज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कैसे? जैसे कि आपका एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस इज अ बल्कन रीजन, अभी आज़ाद हुआ है। अब इस ग्रीस को जीतने के लिए रशिया भी आया, ऑस्ट्रिया भी आया, इंग्लैंड भी आया, है ना। ऑल दीज पावरफुल कंट्रीज देयर मेन इंटेंशन इज दैट कि हमें ग्रीस को जीतना है। अब ग्रीस को जीतने के पहले क्या होगा? दीज कंट्रीज दे फाइट देमसेल्फ। जो पावरफुल होगा वही आपका ग्रीस क्या करेगा? कब्जा करेगा। तो ऐसे हालात में दुनिया एक वार की तरफ आगे बढ़ी, और जिसका नाम था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण आपका बना यही बल्कन रीजन और द आइडिया ऑफ इंपेरियलिज्म। ओके। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका ये नेशनलिस्ट आइडिया के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, द यूरोपियन कंट्री डिजास्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्लियर थी। लेकिन वार हुआ, वार के बाद जो है एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव आया पूरी दुनिया में। मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा कि शुरुआत में पूरी दुनिया ने नेशनलिस्ट आइडियाज़ की तरफ रुख किया था, बाद में वही नेशनलिस्ट आइडियाज़ आपका कन्वर्ट हुआ इंपेरियलिज्म में, है ना। राष्ट्रवाद बदला किस में? आपका साम्राज्यवाद में। क्लियर? मोर एंड मोर कंट्रीज ट्राई टू गेट मोर एंड मोर कंट्रीज। साम्राज्य, अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे थे, जिसके कारण आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी आया, वो ये था कि जो कंट्रीज आपके गुलाम थे, द कॉलोनीज,
लाइक इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, अफ्रीका वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इस प्रकार से जो दुनिया भर के देशों के गुलाम देश थे, कॉलोनी जो थे, उनके अंदर में भी इम्पीरियल के डोमिनेशन के खिलाफ अपोज करना स्टार्ट किया गया। क्योंकि इंडिया में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट रेवोल्यूशन वाज वेरी मच अफेक्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ वो, क्योंकि रोमांटिक आइडियाज़ के कारण हमारे देश के नेता ने भी, हमारे देश के लोगों ने ये समझा कि यस, फ्रांस भी इंडिपेंडेंट हुआ है, जर्मनी भी इंडिपेंडेंट हुआ है, तो हम ब्रिटिश के गुलाम क्यों रहेंगे। ये आइडियाज़ आपका एक तरीके से हर कॉलोनीज में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट डेवलप होना स्टार्ट हुआ और हर कंट्रीज अपने आप को आज़ाद करने के लिए अपने इम्पीरियल पावर से लड़ना स्टार्ट किए। ठीक है, और ये होता है आपका कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। क्या कहलाता है वो, कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो आइडियाज़ थी, हालांकि आपके जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ थी अपने लास्ट में अपनी वैल्यूज़ आइडियाज़ को खो दिया था, लेकिन आइडियाज़ ऑफ नेशन स्टेट जो क्या था आपका, दैट वाज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, दैट वाज नॉट लास्टेड ओनली इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप, बट धीरे धीरे करके ये जो आपका नेशनल स्टेट की आइडियाज़ थी वो पूरे विश्व में डेवलप करना स्टार्ट हुई और ये यूनिवर्सल हुई। क्लियर। तो आई थिंक दैट आपके समझ में आ गया होगा कि हाउ द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म लेड द कंट्रीज, लेड द वर्ल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसका रिजल्ट भी क्या हुआ। ठीक है। सो ऑन द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म किससे आप क्या समझते हो ना, एक बहुत बड़ा वर्ड है जो इस समय आप चाइना के साथ देख ही रहे हो। बाद में आपका है, वाई वर बल्कन नेशन इन ट्रबल, है ना, बल्कन के बारे में डिस्कस किया था, क्यों ट्रबल में है उस पर डिस्कस करना है हमें। हाउ डिड द एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगिन, स्पेशली इन इंडिया या कॉलोनीज में एंटी इम्पीरियल मूवमेंट किस तरीके से लागू चला। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बल्कन रीजन आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ कैसे आगे बढ़ाया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क। Okay, so in this way we are going to conclude the lesson. We will come with the next chapter of new book in the next video. Till then, thank you.